بارگاہ نبوت و رسالت میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وابہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقائے نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. کون اعلیٰ حضرت؟ ہاں وہی اعلیٰ حضرت کہ مانا عرب نے جسے یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہیں تجھ کو سارا زمانہ. حامی سنت اعلیٰ حضرت، حامی سنت اعلیٰ حضرت. اور چیخ پڑے چوٹی کے وہ بڑے، چیخ پڑے چوٹی کے وہ بڑے، پاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کا خوب چلایا. حامی سنت اعلیٰ حضرت، وہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان جب عشق رسالت کے بحر ناپیدا کنار میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ علیہ طیت و سلام یوں نغمہ سرا ہوتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ جل مجدول کریم نے اپنے پیارے نبی کو نبوت سے بھی نوازا ہے، رسالت سے بھی نوازا ہے، اقتدار سے بھی نوازا ہے، اختیار سے بھی نوازا ہے، ملک و مال سے بھی نوازا ہے، حسن و جمال سے بھی نوازا ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ بے شمار قدرت و وعدے خدا نے اپنے پیارے محبوب کو بے شمار صفتوں سے نوازا ہے. انسان کے بس کی بات نہیں کہ نبی کے اوصاف کو انگلیوں کے پور پہ شمار کر سکے. اگر ہم نبی کے اوصاف کو انگلیوں کے پور پہ شمار کریں تو نبی کے وصف کے لیے عیب کی بات ہوگی. میرے امام فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، میرے حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ناز غلامانہ نہ جائے گا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. انتہائی خوشبختی، فیروز مندی اور سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان علماء ربانیین کا ایک نورانی قافلہ جلوگر ہے. آسمان علم و فضل کے آفتاب اور ماہتاب شخصیتوں کی تشریف آوری ہو چکی ہے. آپ ان مقدس علماء کرام کے نورانی چہروں کی زیارت کریں اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالم اسلام کی ممتاز اور قداور شخصیت عالم ربانی نواس حضور مفتی اعظم عالم، خلیفہ حضور مفتی اعظم، نبیر حضور اعلیٰ حضرت، شہزادہ حضور مفسر اعظم ہند، داعی اتحاد اہل سنت، حضور تاج ملت حضرت علامہ الحاج شاہ محمد منان رضا خان عرف منانی میاں ادام اللہ فیوزہ علینا کی تشریف آوری ہونے والی ہے، جلوہ گری ہونے والی ہے. الحمدللہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس نورانی چہرے کی زیارت کریں گے. اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ شخصیتیں ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئی ہیں. ہم اپنے جملہ اساتذہ، طلبہ اور اراکین کی جانب سے ان جملہ شخصیات کا بصد خلوص و بصد احترام استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. حضرات محترم، حضور منانی میاں صاحب کی ذات بڑی عرف و اعلیٰ ہے. آپ نے اپنی پوری زندگی تبلیغ دین متین و تشہیر دین اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ
तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत और इत्तिहाद अहले सुन्नत में सर्फ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पूरी जिंदगी अशिद्दाउ वल कुफ़ार व रहमाउ बैनहुम की मज़हर है। आपकी फिरासत इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मोमिन व इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह की मुकम्मल आईनादार है। आपकी शख्सियत अल-हुब्बु फ़िल्लाह वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह की मुकम्मल मिस्दाक़ है। आपने पूरी जिंदगी मज़हब इस्लाम की तबलीग के लिए वक़्फ़ किया है। कौन मन्नानी मियाँ? वो मन्नानी मियाँ जिनकी निगाहों में जवाज़े खुदावंदी समाया हुआ है। कौन मन्नानी मियाँ? वो मन्नानी मियाँ जिनके कल्ब में सैयद सरकार बिस्वाद तस्लीम के इश्क और उल्फत की लगन मौजूद है। कौन मन्नानी मियाँ? वो मन्नानी मियाँ जिनके सीने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की खुलूस व प्यार की तनवीर मौजूद है। वो मन्नानी मियाँ जिनकी पेशानी में हज़रत उमर फारूक आज़म की शिद्दत और सख्ती के जलवे हमेशा नुमाया नजर आते हैं। कौन मन्नानी मियाँ? वो मन्नानी मियाँ जिनके सीने में सुन्नत उस्मानी की मचकती हुई शान इस्तिग़ना मौजूद है। वो मन्नानी मियाँ जिनकी जुबान में ज़रब यदुल्लाही और ज़ुल्फ़िकार हैदरी की चमक मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो नूरानी शख्सियत, वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, वो मोहतरम शख्सियत अभी हमारे और आपके दरमियान जल्दगर होने वाली है। आपने पूरी जिंदगी इस रुश्तो हिदायत के लिए, बैत और इरशाद के लिए वक़्फ़ कर दिया है। आप जो चल चल करके नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती लोगों को बैत कर रहे हैं, दाखिल सिलसिला कर रहे हैं, ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इसलिए कि इसी के ज़रिए से क़ुलूब की तत्हीर होती है और मुल्क मिल्लत की तामीर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए एक बहुत मुत्तकी, परहेज़गार और ज़ोदो वरा के मुजस्सम और पैकर शख्सियत की ज़रूरत है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मन्नानी मियाँ के ज़ोदो वरा के बारे में, तक़वा व तहारत के बारे में अकाबिर उलमा इतराफ़ करते हैं और अकाबिर उलमा का इक़रार मौजूद है। हज़रात नूरानी शख्सियत अभी हमारे और आपके दरमियान इंशाअल्लाह वज़ीर थोड़ी देर में जल्दगर होने वाली है। आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। और जो हज़रात अभी तक के किसी भी सिलसिले में दाखिल नहीं हुए हैं, उनके लिए एक सुनहरा और हसीन मौका है। मन्नानी मियाँ के हाथों में सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले में दाखिल हो जाए। हज़रात आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल जो तुम्हें दे उसे दे दो और जिससे मना फरमाए उससे बाज आ जाओ। हज़रात मोहतरम शरीयत मुतहरा का जायजा लिया जाए तो शरा में दो तरह के अहकाम पाए जाते हैं। कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनके करने का हुक्म शरीयत ने दिया है। मसलन नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, सदकात करो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, हुस्ने सलूक का मुजाहरा करो। ये वो चीजें हैं जिसे शरीयत ने करने का हुक्म दिया है। इसको शरा की इस्तिलाह में अवामिर कहा जाता है। इसके बरक्स, इसके अपोजिट कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे शरीयत ने मना फरमाया है। मसलन चोरी ना करो, ज़िना के करीब ना जाओ, बेहयाई के करीब ना फटको। ये वो चीजें हैं जिसे शरा ने मना फरमाया है। इनको शरा की इस्तिलाह में नवाही कहा जाता है। हज़रात मोहतरम शरीयत मुतहरा का जायजा लिया गया तो शरा में दो तरह के अहकाम पाए गए जिनको मुख्तसर लफ्जों में अवामिर व नवाही कहा जाता है। आज मैंने जिस आयत करीमा को उन्वाने सुखन बनाया है उस आयत में दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अवामिर का बयान है, दूसरे में नवाही का बयान है। रब फरमाता वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु, रसूल जो तुम्हें दे उसे दे दो। रसूल इज्जत दे इज्जत ले दो, कुरान दे कुरान ले दो, दौलत दे दौलत ले दो, हदीस दे हदीस ले दो, इल्म दे इल्म ले दो, हुनर दे हुनर ले दो। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले दो। इसमें किसी चीज की कोई कैदोबंद नहीं है, कोई तखसीस नहीं है कि रसूल ये देंगे, ये नहीं देंगे, ये देंगे, ये नहीं देंगे। बल्कि रब तबारक व तआला ने कुरान में आम फरमाया है रसूल जो तुम्हें दे उसे दे दो। गोया कि कुरान की आयत मुबारका मुतलक है और जिसको कुरान में खुदा ने मुतलक रखा है दुनिया का कोई माई का राय नहीं उसे मुक़य्यद कर दे। हज़रात मोहतरम ज़हन फिक्र को हाजिर कीजिए। आज नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती गर्जे की हद महाज पर पुकार करके कहा जाता है या रसूलल्लाह ना कहो, नबी से ना मांगो, वली से ना मांगो, सहाबी से ना मांगो, गौस से ना मांगो, खाजा से ना मांगो, मखदूम कचौचा से ना मांगो, सैयद सालार मसूद गाजी से ना मांगो, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश ना करो।
نے کہا بات کیا ہے؟ کہا دیتا خدا ہے، غیر خدا سے مانگنا شرک ہے۔ میں نے کہا نابکار بلا ہنجار اپنے عقل کا علاج کر، میں نہیں کہتا، رب کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وہ اپنے دل کے اوپر اپنے سینے میں کفر کی مشین لے کر کے گھومنے والا قرآن پر رب کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو۔ قرآن کا اعلان ہے کہ رسول دینے والے، اور جب رسول دینے والے ہوئے تو پوری کائنات لینے والی ہوئی، اور جب ہم لینے والے ہوئے تو پھر عشق رسول کے عشق رسالت کے بحرین پیدا کرانے میں غوطہ لگائیں گے، اور اپنے مرشد اپنے امام احمد رضا خان کی زبان میں اس انداز میں عرض کریں گے بکار خیر شہرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور فرماتے ہیں شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد سیانم اغسنی یا رسول اللہ۔ اور اپنے لوگوں کا تو حال یہ ہے اگر رانی اگر خانی غلامم انتا سلطانی، اگر رانی اگر خانی غلامم انتا سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اغسنی یا رسول اللہ، دیگر چیزیں نمی دانم اغسنی یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، اب میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں جو شخص دیتا ہے وہ مالک و مختار ہوتا ہے یا نادار اور قلاش ہوا کرتا ہے؟ جس کے قبضے اور قدرت میں کوئی چیز ہوگی وہ دے گا، یا جس کے قبضے میں کوئی چیز ہے نہیں وہ دے گا؟ آپ بتائیں دینے کا ضابطہ کیا ہے، اصول کیا ہے؟ دیتا وہی ہے جس کے ملک میں، اختیار میں، قبضے میں، قدرت میں کوئی چیز ہوتی ہے وہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ مثلا میں اس مائک کا مالک نہیں ہوں، آپ کو نہیں دے سکتا، مگر اس موبائل کا ضرور مالک ہوں، میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ دیتا وہی ہے جو مالک و مختار ہوتا ہے۔ رب نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو۔ قرآن کا اعلان ہے کہ رسول دینے والے اور دیتا وہ ہے جو مالک و مختار ہوتا ہے۔ لہذا کہہ دو مسلمانوں میرا نبی مالک و مختار نبی ہے، میرا نبی صاحب اقتدار نبی ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہان ہے آپ کے قبض و اختیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت آج جب نبی کے اختیار کی بات کی جاتی ہے، اختیار مصطفیٰ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر سلف سے لے کر کے خلف تک، صحابہ سے لے کر کے ائمہ تک، اور ائمہ کرام سے لے کر کے بعد کے بزرگان دین تک سبوں کا اتفاق ہے، سبھی مانتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ جوان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تصرفات اور اختیارات سے نوازا ہے، مگر آج کی 14ویں صدی اور 15ویں صدی کے اندر کچھ نابکار لوگ جنم لے لیے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین، وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی جہنم سے نہیں بچا سکتے معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ رب العالمین۔ ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کے بے بس بندے ہیں معاذ اللہ، وہ بھی صدبار معاذ اللہ۔ آج جب نبی کے اختیار کی بات کی جاتی ہے کہ یہ وہاں بڑے جہنمی کتے حرام زادے نبی کے اختیار کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس انداز میں سوال کرتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ سرکار و تسلیم کے سگے نواسے ہیں، اگر سرکار و تسلیم سرور کائنات مالک و مختار ہوتے تو اختیار کا کچھ جلوہ میدان کربلا میں بھی نظر آتا۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا آپ صاحب اگر سرکار و تسلیم صاحب اختیار ہوتے تو صاحب زمین کو اشارہ کر دیتے، زمین سے پانی کے چشمے نمودار ہو جاتے، اگر صاحب اختیار ہوتے تو صاحب دریائے فرات کو اشارہ کر دیتے، دریائے فرات امام علی مقام کے قدموں میں حاضر ہو جاتا، اگر اشارہ کر دیتے تو صاحب آسمان سے بارش کے قطرات نازل ہو جاتے۔ میں نے کہا رہنا بکار اپنے ہوش کا علاج کر، سوال اٹھا کربلا میں جواب ملا اجمیر معلیٰ میں مناسبت کتنی ہے؟ کربلا میں نواز رسول ہے، اجمیر معلیٰ میں عطائے رسول ہے، کربلا میں بھی پانی بند ہے، اجمیر معلیٰ میں بھی پانی بند ہے، کربلا میں دریائے فرات ہے، اجمیر معلیٰ میں انا ساگر ہے۔ میرے خواجہ نے اپنے غلام کو ایک کاسا دے کر کے بھیج دیا، غلام نے جا کر کے انا ساگر سے کہا کہ تجھے میرے خواجہ بلا رہے ہیں، انا ساگر کا سارا پانی
सारा पानी उस छोटे से कूजे के अंदर सिमट गया। हजरात मोहतरम, जब मेरे करीब नमाज के इख्तियार का यह आलम है, जो कि नबी नहीं है, रसूल नहीं है, अताए रसूल है, निवासाए रसूल है, आने रसूल है, जब आने रसूल के इख्तियार का यह आलम है, तो मदीने के ताजदार के इख्तियार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे जब मुख्ताज का यह आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, प्यारे मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू करने के लिए रात और दिन कम पड़ सकते हैं। हज़रात, मैं एक वाक़या इसी पर बयान करना चाहता हूँ। सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मुझे शदीद भूख लग गई। शिद्दते भूख से मैं निढाल हो गया। कई रोज गुजर गया था, मेरे हदक से अनाज का लुकमा नहीं नीचे उतरा था। मैं जब भूख से निढाल हो गया, चलने में मेरे पाँव लड़खड़ाते थे। मैं एक दिन लोगों की गुजरगाह पर रास्ते पे खड़ा हो गया, इस नीयत और इस मकसद से कि हो सकता है गुजरने वालों में किसी की निगाह हमारे चेहरे पर पड़ जाए और वो हमारे हाले जार पर रहम खाएं और फिर खाने के लिए कुछ दे दें। हज़रात मोहतरम, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं लोगों के रास्ते पर खड़ा हो गया। सबसे पहले जो शख्सियत मेरे सामने से गुजरी वो महबूब मुस्तफ़ा, यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे गारे मज़ार, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात थी। आप फरमाते कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से एक आयत मुबारका के मुताबिक इस्तिफ़सार किया, दरियाफ्त किया, जबकि वो आयत मुबारका मुझे मालूम थी, उसके मानी और मुताबिक भी मुझे मालूम थे, मगर मकसद ये था कि हो सकता है जवाब देते समय इनकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़े और मेरे हालेजार पर रहम खाएं, मुझे खाने के लिए कुछ चीज़ दे दें ताकि हमारी ज़िंदगी की रमक बाकी रह जाए। मगर वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे जो निगाहें नीची करके चला करते थे। आप निगाह नीची किए जवाब दे करके आगे बढ़ गए और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर उन्होंने निगाह नहीं डाली। मोहतरम फरमाते कि फिर जब दूसरी शख्सियत गुजरी वो मुराद मुस्तफ़ा, खलीफे दोम, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात थी। वो फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक आज़म से मैंने वही कुरान की आयत मुबारका के मुताबिक पूछा, जबकि कुरान की आयत मुझे मालूम थी, उसका माना भी मालूम था, तफसीर भी मालूम थी, सारी चीज़ें मुझे मालूम थी। बस मकसद ये था कि जवाब देते समय उनकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़े और फिर वो मेरे हालेजार पर रहम खा करके मुझे खाने के लिए कुछ दे देंगे। मगर हज़रत उमर फारूक आज़म भी निगाह नीची करके जवाब दे करके आगे बढ़ गए। आप फरमाते सुम्मा मर्रा बी अबुल कासिम फतबस्समा, फिर खातमे पैगंबरा सरवरे कौनो मका, हम गरीबों के वाली, हम बेसहारों के सहारा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। उन्हें कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही देख करके मुस्कुरा दिया और इरशाद माया, ऐ अबू हुरैरा आओ मेरे साथ चलो, यह सरकार विश्वास तस्लीम का इल्मे गैब नहीं तो और क्या है। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सरकार ने इरशाद में अबू हुरैरा आओ मेरे पीछे पीछे चलो। अब सरकार विश्वास तस्लीम आगे आगे चलते चले जा रहे हैं, पीछे पीछे हज़रत अबू हुरैरा चले जा रहे हैं। सरकार विश्वास तस्लीम हुज़ुर आयशा के अंदर दाखिल हुए, इरशाद माया, ऐ आयशा क्या खाने की कोई चीज़ घर के अंदर मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सिवाय एक प्याली दूध के घर में कोई और चीज़ मौजूद नहीं है। वो फला आपके अंसारी सहाबी ने आपकी बारगाह में दूध का प्याली पेश किया है। सरकार विश्वास तस्लीम ने अपने दस्ते बाबरकत में उस दूध के प्याले को दिया और आप हुज़ुर आयशा से बाहर तशरीफ लाए। अबू हुरैरा से इरशाद माया, अरे अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़ा को भी बुला लाओ, असहाबे सुफ़ा भी भूखे हैं, प्यासे हैं, उन्हें भी कुछ खिला दिया जाए, उन्हें भी कुछ पिला दिया जाए। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने दिल ही दिल में सोचा एक प्याला दूध है, एक प्याला दूध है, असहाबे सुफ़ा की तादाद 70 है, एक
प्याले दूध में इतने सारे लोगों को कैसे काफी होगा, कैसे किफायत करेगा। मगर सरकार विस्वाद तस्लीम के हुक्म को मानने के सिवा कोई चारा न था। अबू हुरैरा गए, असहाबे सुफा को बुला करके लाए। सरकार विस्वाद तस्लीम ने अबू हुरैरा को हुक्म दिया, अरे अबू हुरैरा तुम अपने हाथ से इन असहाबे सुफा को पिला दो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने हाथ से असहाबे सुफा को पिलाते चले जा रहे हैं। एक को पिलाया, दूसरे को पिलाया, तीसरे को पिलाया, चौथे को पिलाया, पांचवें को पिलाया, हत्ता कि 70 असहाबे सुफा ने दूध नोश कर लिया। मगर उस दूध के अंदर जर्रा बराबर भी कमी ना आई। फिर सरकार विस्वाद तस्लीम ने इरशाद फरमाया, बकीतु अना व अंता। सरकार ने फरमाया मुस्कुरा करके, अबू हुरैरा अब हम और तुम बाकी रह गए। सरकार ने अपने दस्ते बाबरकत में दूध के प्याले को दिया। अबू हुरैरा से फरमाया, अरे अबू हुरैरा तुम नोश फरमाओ, अब तुम पियो। सरकार विस्वाद तस्लीम अबू हुरैरा को पिलाते चले जा रहे हैं। अबू हुरैरा पीते चले जा रहे हैं, पीते चले जा रहे हैं। जब शिकम सैर हो गए, आपने अपने लबहाए मुबारक को दूध के प्याले से हटा दिया। सरकार ने इरशाद फरमाया, अरे अबू हुरैरा और पियो। अबू हुरैरा फिर पीने लगे। पीने के बाद आपने फिर अपने लबहाए मुबारक को दूध के प्याले से हटा दिया। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा इशरब मजीदा, और पियो और पियो। अब अबू हुरैरा तड़प गए। इरशाद फरमाया, वल्लज़ी बाअसका बिल हक़, कसम उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है, अब मेरे पेट में जर्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं रही है, अब मैं इससे ज्यादा नहीं पी सकता। सरकार विस्वाद तस्लीम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और फिर आपने उस दूध के प्याले को नोश फरमाया। इस तरीके से दूध का प्याला खत्म हो गया। हज़रात मोहतरम, एक प्याले दूध में 70 असहाबे सुफा भी सैराब हो गए, अबू हुरैरा भी सैराब हो गए, सरकार विस्वाद तस्लीम भी सैराब हो गए। मगर दूध के प्याले में कुछ भी कमी ना हुई। ये इख्तियार मुस्तफा नहीं तो और क्या है। मेरे इमाम फरमाते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जादशीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गए। हज़रात मोहतरम, ये है इख्तियार मुस्तफा। इख्तियार मुस्तफा बिल्कुल अजहर क्रिश्चियन वो पहले के आराबी थे जो सरकार विस्वाद तस्लीम के इख्तियार को देख करके, मोजज़े को देख करके साहिब ईमान हो जाया करते थे। आज के बदअकीदा वहाबी है जो सरकार विस्वाद तस्लीम की अजमत को, इख्तियार को, मोजज़े को देखता है, आपके कमालात को देखता है, उसके बावजूद भी इनकार करता है। हज़रात मोहतरम, एक और वाक़या बयान करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। हज़रत साबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती कि एक बार हज़रत जाबिर ने मुझसे इरशाद फरमाया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सुलह हुदैबिया के रोज़ सारे लोग, सुलह हुदैबिया के रोज़ लोग प्यासे थे। सरकार विस्वाद तस्लीम के पास बस फकत एक प्याला पानी था। उस प्याले से आप सोचमा वजू करने लगे। सारे लोग दौड़े दौड़े बारगाह रसूल में हाजिर हो गए। सरकार ने फरमाया, मालकुम, तुम्हें क्या हुआ है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, बस इसी एक प्याले पानी के अलावा कुछ भी पानी हमारे पास नहीं है कि हम जिससे वजू कर लें या जिससे हम सैराब हो जाएं। हजरत अबू हुरैरा, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार विस्वाद तस्लीम ने अपने दस्ते बाबरकात को उस प्याले के अंदर डाला। आपके उंगलियों की खाइयों से पानी के चश्मे नमूदार हो गए, पानी के चश्मे नमूदार हो गए। हजरत सादिन फरमाते हैं कि मैंने जाबिर से पूछा, उस वक्त आप लोग कितने लोग थे? हजरत सादिन ने फरमाया कि हजरत जाबिर ने फरमाया कि उस वक्त हम लोग 1500 की तादाद में थे, और अगर 1 लाख की तादाद में होते तो सारे लोगों के लिए भी वो पानी काफी हो जाता, सारे लोग उससे सैराब हो जाते, उससे वजू फरमाए थे। मगर उस वक्त हम लोग फकत 1500 थे, सारे लोग भी सैराब हुए। मेरे इमाम फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी वाह वाह। प्यारे मुस्तफा नहीं तो और क्या है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात वो ज़ात है कि जिसकी जानिब भी इशारा कर दें वो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता था। आपकी हुकूमत शजर हजर शमशो कमर खुशको तर गर्जे की दुनिया जहान की हर चीज़ पर थी। हज़रात मोहतरम, एक वाक़या मैं बयान करना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, कुन्ना मान नबी फी सफ़र, एक सफ़र में हम सरकार विस्वाद तस्लीम के साथ थे।
ایک आराबी आए कि वो सरकार इस वक्त तस्वीर से करीब हुए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अतशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, क्या तो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और मोहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं। उसने उन आराबी ने कहा कि मैं यशहदु अला मा तक़ूल, आपकी इस बात पर मेरे अलावा और कौन गवाही देगा। सरकार इस वक्त तस्वीर ने फरमाया हादिही सलमा, ये बबूल का दरख्त गवाही देगा। मुर्रिखीन बयान फरमाते हैं, मुहद्दिसीन रिवायत फरमाते हैं कि सरकार इस वक्त तस्लीम ने उस बबूल के दरख्त को बुलाया। फदआहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा बिशातिल मवादी फाक़बलत तख़ुद्दुल अर्द हत्ता क़ामत बैन यदैहि। सरकार ने उस बबूल के दरख्त की जानिब इशारा फरमाया। वो बबूल का दरख्त आगे पीछे हरकत किया और फिर जमीन को चीरता फाड़ता हुआ सरकार इस वक्त तस्लीम की बारगाह में हाजिर हो गया। अल्लाह के रसूल ने उस दरख्त से 3 मरतबा सरकार अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और अपने नबूवत और रिसालत की गवाही दी। उसने 3 बार गवाही दी कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, तो मोहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं। हज़रात मोहतरम, जब सरकार इस वक्त तस्लीम के हुक्म में इतनी ताकत है, आपके इशारे में इतना पावर है, आपके बात में इतनी ताकत है, तो फिर आपके ज़ात में कितनी ताकत होगी। मेरे इमाम फरमाते हैं चांद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदा करें, चांद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदा करें, बारकल्लाह मर जाए आदम, यही सरकार है। और आपके मज़हर कामिल हुजूर शेर सुन्नत फरमाते हैं जिस वक्त हुई उनको गवाही की जरूरत, अरे बुत बोल उठे पढ़ने लगे कलमा शजर भी। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हज़रत खिताब कर रहे थे और आप हजरात बड़ी ही संजीदगी सुन रहे थे। मैं गुजारिश करता हूँ जो पीछे हजरात बैठे हैं वो सामने आ जाए। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हुजूर मन्नानी मियां साहब क़िबला इंशाअल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं। आप हजरात आप सामने आ जाएं। एक मरतबा जी लगा के बोल दें या रसूल अल्लाह, जी लगा के बोल दें या रसूल अल्लाह। कुफ्र के